So, students, today I'm going to start a new module. That is the module 2, residential and commercial electrical systems. Okay. In this module, the topic which we have to cover are as follows. Okay. So, under this module, we will see about the different types of the residential and commercial wiring system. Okay. What are the different types of the wiring system? We will discuss about these things. Okay. Then the general rules and guidelines for the installation. For the installation, that means the general rules and guidelines related with the electrical wiring system. Okay. Then the load calculation and sizing of the wire. Okay. Rating of main switch, distribution board, and protection devices. Okay. So what should be the rating for a particular type of the wiring system? Okay. For residential purpose, what should be the rating if the load is given? So these things we will see under this topic. Then the earthing system calculation, okay, requirements of commercial installation, deciding lighting scheme and number of lamps, earthing of commercial installation, selection and sizing of the components that we are using in electrical wiring. So as you can see that little bit of portion related to this module that we have already covered. Okay. So basic things we have discussed. So the things which are left related to these topics. Okay. So those things we will cover under this module. Okay. So little bit of knowledge about the different topics. I think all of you are aware, okay, except the types of the wiring system, distribution board, earthing, wire, their ratings, okay, and lighting schemes. And these things I think we have covered. Okay. Otherwise, we will see in detail one by one. Okay. So starting with the types of the electrical wiring system. Okay. So first of all, I would like to remind you that what is electrical wiring? It is a process of connecting various accessories for distribution of electrical energy from supplier's meter board to home appliances such as lamp, fan, and other domestic appliances. That is known as electrical wiring. Okay. This definition we have understand in detail in the first module, okay, about the electrical wiring. Now we have to see what are the different types of the wiring that we are using. Okay. Either it is the old wiring system or the modern technologies that we are using. Okay. So different types of the wiring system we will see. Before that, let us discuss about some factors. Okay. So what are the factors which affect the selection of the wiring? क्या फैक्टर्स हो सकते हैं क्योंकि हमारे वायरिंग सिस्टम किस तरह का वायरिंग सिस्टम को सेलेक्ट करना है वो डिसाइड करते हैं. ठीक है. कुछ फैक्टर्स है जैसे कि ड्यूरेबिलिटी. ठीक है. कितना ड्यूरेबल है हमारा, कितना सेफ है, सेफ्टी, अपीयरेंस, कॉस्ट, एक्सेसिबिलिटी, मेंटेनेंस कॉस्ट. कहने का मतलब वायरिंग हम लोगों को बेसिकली पहले ये देखना होगा कि कहाँ पर करना है. अगर फैक्टर्स की हम लोग बात करें किस तरह का वायरिंग करना है. ठीक है. नॉर्मली क्या पता है आप लोगों को वायरिंग किस तरह से हम लोग करते हैं इन जनरल. टाइप्स ऑफ द वायरिंग के बारे में थोड़ा बहुत बता सकते हैं, कुछ आइडिया अगर.
जो हम लोग देखते हैं घरों में नॉर्मली। एक तो देखते हैं ना कि एक हमारा पुराना मेथड है वायरिंग करने का, एक ट्रेडिशनल, और एक थोड़ा सा आज के डेट में मॉडर्न टाइप से हम लोग एक वायरिंग करते हैं। इस चीज को नोटिस किया है? अगर पुराने घर के वायरिंग को देखें हम लोग, तो उसमें क्या रहता है नॉर्मली, जो वॉल होता है वॉल के ऊपर में वायर्स और पाइप जितने भी एसेसरीज होते हैं उन सबको इंस्टॉल किया जाता है, होता है ना। ये पुराने जो भी मतलब कि वायरिंग सिस्टम, या जो एग्जिस्टिंग है बना बनाया जो भी बिल्डिंग है वहां पर अगर वायरिंग करना हो, तो नॉर्मली सबसे इजीली मेथड क्या है हमारा, कि वॉल के ऊपर में पाइप, डिफरेंट फिटिंग्स और वायर, इन सबको हम लोग अरेंज करते हैं और वायरिंग कर देते हैं। एक तो ये मेथड है। दूसरा क्या मेथड होता है कि अगर कोई नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कोई नया बिल्डिंग बन रहा है, कोई अपार्टमेंट बन रहा है सपोज, ठीक है, तो वहां पर नॉर्मली क्या होता है कि वॉल के अंदर में ही सारा जो पाइप होता है और उसके अंदर जो वायर्स होते हैं वो सारा वॉल के अंदर ही होता है। वॉल के बाहर में सिर्फ क्या दिखाई देता है हम लोगों को, उसका पॉइंट्स, उस वायरिंग का जो भी कनेक्टिंग पॉइंट्स होता है, स्विच बोर्ड्स होता है, वो सिर्फ वॉल पर हम लोग को दिखाई देता है, ठीक है, जिसको भी मॉड्यूलर टाइप्स ऑफ बोर्ड यहाँ पर यूज करते हैं। तो मोटा मोटी अगर बात करें हम लोग, तो ये दो तरह के तो वायरिंग हम लोग देखते ही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? यस सर। यस। तो अगर इन्हीं दोनों टाइप्स को फिलहाल अपने माइंड में रखो और तब सोचो कि कौन कौन सा फैक्टर्स है जो कि सिलेक्शन ऑफ वायरिंग को अफेक्ट करते हैं। ड्यूरेबिलिटी, दैट मीन्स कितना हमारा वो वायरिंग जो है लंबे समय तक के लिए काम कर सकता है, ठीक है, विदाउट एनी इंटरप्शन, विदाउट एनी फॉल्ट। कितना सेफ है हमारा वो वायरिंग, ठीक है, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, अगर वॉल के ऊपर में है और प्रॉपर उसको हम लोग जो पाइप्स होता है या उसके थ्रू वायर को हम लोग नहीं रन कराते हैं, और ऐसे ही अगर वायर को हम लोग हैंग कर देते हैं वायरिंग के लिए, तो वो उतना ज्यादा सेफ नहीं होगा, ठीक है, कंपेयर टू अगर वॉल के पीछे, वॉल के अंदर जो है हम लोग पूरा वायरिंग सिस्टम को अगर सेटअप करें, तो वो ज्यादा सेफ होगा क्योंकि एसेसिबल टू मैन पावर नहीं है, ठीक है। अपीयरेंस वाइज भी अगर देखें, तो जो मॉडर्न डेज में यूज होता है वायरिंग, ठीक है, जो सारा कुछ सेटअप वायरिंग का वॉल के अंदर में ही होता है, एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन ही सब चीजों को किया जाता है, तो वो अपीयरेंस वाइज भी देखने में भी अच्छा लगता है कंपेयर टू ओल्ड वायरिंग सिस्टम जो भी है। कॉस्ट इज ऑल्सो अ फैक्टर, दोनों तरह के वायरिंग सिस्टम में कॉस्ट का डिफरेंस काफी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। या एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है उसमें अगर हम लोगों को मॉडर्न तरीके से वायरिंग करवाना है तो वहाँ भी कॉस्ट हमारा ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है, तो कॉस्ट भी एक फैक्टर होता है। एसेसिबिलिटी, कई ऐसे लोकेशंस होंगे जहां हम लोग चाहेंगे कि मॉडर्न तरीके से करना, लेकिन कर नहीं पाएंगे, ठीक है, इतना ज्यादा वो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में वो बिल्डिंग होगा कि वहां लोग चाह के भी नहीं कर पाएंगे। एसेसिबिलिटी भी एक फैक्टर है, एंड द मेंटेनेंस कॉस्ट, ठीक है, इस तरह के वायरिंग में मेंटेनेंस हमारा ज्यादा लगेगा कम लगेगा। तो ये सारे फैक्टर्स है जो कि डिसाइड करते हैं कि किस तरह के वायरिंग सिस्टम को अडॉप्ट करना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। हम लोग बात करें रेसिडेंशियल और कमर्शियल पर्पज के लिए, तो फैक्टर्स क्लियर है, ठीक है, ये सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि सिलेक्शन ऑफ वायरिंग को अफेक्ट करें। एग्री? यस सर। यस सर। यस सर। तो अब हम लोग देखते हैं टाइप्स, ठीक है। फैक्टर्स तो हम लोग देख लिए क्या हो सकते हैं,
अब हम लोग टाइप में देखते हैं कितने तरह के वायरिंग होते हैं। तो नॉर्मली हम लोग इसको डिवाइड करते हैं 4 टाइप्स ऑफ द वायरिंग, ठीक है, जो भी हमारा आइदर इट इज ओल्ड मेथड और मॉडर्न मेथड, ठीक है। तो ये 4 टाइप्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज क्लिप वायरिंग, सेकेंड वन इज केसिंग एंड कैपिंग वायरिंग, थर्ड वन इज बैटन वायरिंग। बैटन वायरिंग भी 2 तरह के होते हैं, सीटीएस और पीवीसी सेट वायरिंग, और लेड सीटेड और मेटल सीटेड वायरिंग, ठीक है। हम लोग देखेंगे वन बाय वन सबको डिटेल में। और फोर्थ वन है कंड्यूट वायरिंग, ठीक है। ये भी 2 तरह के होते हैं, सरफेस और ओपन कंड्यूट टाइप, एंड द सेकंड वन इज कंसील्ड और अंडरग्राउंड टाइप कंड्यूट, ठीक है। तो ये 4 तरह के टोटल हमारा वायरिंग होता है, ठीक है। अब हम लोग वन बाय वन अगर इसको देखें, फर्स्ट वन है हमारा क्लीट वायरिंग। क्लीट कहने का क्या मतलब होता है? क्लीट का मीनिंग क्या है, किसी को पता है? नहीं पता तो गूगल भी कर सकते हो। क्लिट मतलब, कहने का मतलब है कुछ हमारा समझ लो जैसे जूते में क्या होता है, कुछ नेल्स जैसे होते हैं ना उसके बॉटम में, जो स्पोर्ट्स वगैरह में यूज होते हैं, ठीक है। या फिर जो कुछ नुकीला जैसा कुछ होता है, ठीक है, उस तरह के जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, नॉर्मली इसके लिए क्लिट वर्ड यूज किया जाता है। कहने का मतलब है कि कोई भी एक सरफेस है उसके ऊपर में कुछ हमारा अगर प्रोजेक्टेड कोई भी पार्टिकल है या कोई भी ऑब्जेक्ट स्मॉल हाइट का, ठीक है, उसके लिए क्लिट वर्ड हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं। तो ये क्लिट वायरिंग में क्या होता है, इस तरह का वायरिंग देखे भी हो तुम लोग, ठीक है, आजकल बहुत कम देखने मिलेगा, लेकिन अगर किसी पुराने बिल्डिंग को देखोगे तो वहां पर जरूर देखने मिल सकता है ये चीज, और कई लोगों ने देखा भी होगा इस तरह का वायरिंग। पहले फिगर देखते हैं इसका, ठीक है, तब शायद इन चीजों को इजीली समझ सको। इस तरह के वायरिंग को देखे हो? यस सर। और इस तरह के इक्विपमेंट को वायरिंग पर्पस के लिए देखे हो इस तरह को? यस सर। इसी को हम लोग कहते हैं क्लिप वायरिंग, ठीक है। ये एक मतलब बेसिकली एक कंपोनेंट है ये, ठीक है, ये कंपोनेंट है जो कि हम लोग यूज करते हैं क्लिप वायरिंग के लिए। तो ये क्या कहता है, इन दिस सिस्टम ऑफ वायरिंग, केबल या वायर कह ले उसको हम लोग, ठीक है, they are supported and gripped between porcelain plates and above the wall of roof, ठीक है। जो पोर्सलिन क्लिप होता है, ये जो क्लिप है, ठीक है, दिस इज अ क्लिप विथ 2 ग्रुप्स, ठीक है, ये 2 ग्रुप्स है, ये एक और ये दूसरा, ठीक है। तो वायर जो है इसी ग्रुप्स के थ्रू हम लोग वायर को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। वायर जो भी वायरिंग के लिए हम लोग ले डाउन करेंगे वो इसी इसी ग्रुप्स के थ्रू होते हुए जाता है, ठीक है। ये एक दूसरा है क्लिप विथ 3 ग्रुप्स, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3, अगर 3 वायर को हम लोगों को वायरिंग के लिए यूज करना है तो इस तरह का हम लोग क्लिप यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा होता था ओल्ड वायरिंग सिस्टम जितना था, वहां पर हम लोग इस तरह का यूज करते थे स्टार्टिंग डेज में। ये कह रहा है कि केबल्स आर सपोर्टेड एंड ग्रिप्ड बिटवीन पोर्सलिन क्लिप्स, ठीक है। केबल को यहाँ पे ग्रिप किया जाता है जो ग्रुप्स है, इस फिगर में भी देख रहे होगे इस चीज को यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर है ना, एक ये है ग्रुप और एक दूसरा ये है, ठीक है? ये दोनों वायर को यहाँ पर दिए जाते हैं ग्रुप्स, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहता है, केबल को हम लोग इसी ग्रुप्स के थ्रू
कैरी करते हैं, एंड द मेन पार्ट इज बेस, ठीक है, यही हमारा बेस है, विच इज ग्रुप टू एकोमोडेट द केबल्स। तो सिंपल इसका स्ट्रक्चर है, ये हमारा बेस है, ठीक है, और उसी में ये ग्रुप्स बना होता है जहां से केबल को हम लोग कैरी करते हैं, और इसको इस तरह से हम लोग यूज करते हैं। नॉर्मली कहा जाता है कि 30 to 60 सेंटीमीटर का डिफरेंस रहना चाहिए दो प्लेट के बीच में जब इस तरह से वायरिंग कर, ठीक है, ये जनरल एजम्पशन है, कॉन्सेप्ट है, बट एज पर द साइट लोकेशन ये चेंज भी हो सकता है थोड़ा बहुत, ठीक है। और क्या कहता है हमारा क्लिट वायरिंग में जो केबल हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है, द केबल रिकमेंडेड फॉर दिस टाइप ऑफ वायरिंग that those are the VIR cable and PVC cable, ठीक है, PVC है VIR केबल, vulcanized Indian rubber और polyvinyl chloride cables, ठीक है, इस तरह का केबल का हम लोग यूज कर सकते हैं नॉर्मली, जो कि इसके लिए रिकमेंड किया जाता है। तो नॉर्मली ये ज्यादातर पोर्सलिन का बना हुआ होता है, बट समटाइम्स प्लास्टिक या वुड का भी यूज किया जाता है इस तरह के क्लिट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, बट ज्यादातर पोर्सलिन का ही बना हुआ होता है, ठीक है। कई सारे जगह प्लास्टिक भी दिख जाएगा, वुड थोड़ा कम दिखता है। तो ये हमारा इस तरह का जो भी स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का जो भी वायरिंग सिस्टम देखने मिलेगा, दैट इज द क्लिट वायरिंग। क्लियर? तो इस तरह का वायरिंग सिस्टम में Yes, हमारे sir. कुछ एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है, ठीक है। एडवांटेज क्या है? ऑब्वियसली इट इज द चीपेस्ट सिस्टम, ठीक है। इंस्टॉलेशन एंड डिसमेंटलिंग इज इजी एंड लेस स्किल्ड पर्सन्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है, बिल्कुल ही सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड वायरिंग है, कोई स्किल बहुत ज्यादा होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इजिली उसको एक स्ट्रेट लाइन में और उसको इंस्टॉल करते जाना है, उस ग्रुप्स के बीच से वायर को पास करते हुए, ठीक है। इंस्पेक्शन इज इजी ऑब्वियसली एंड द अल्ट्रेशन एंड द एडिशन आर आल्सो इजी, ठीक है। वायर को उसमें ऐड करना हो तो हम लोग उसको इजीली वहां पर ऐड कर सकते हैं, ओके। तो दीज आर द एडवांटेजेस विद एसोसिएटेड विद द क्लिक। हाँ, हेलो, कुछ बोल रहे हो क्या? अल्ट्रेशन मतलब क्या हुआ? अल्ट्रेशन मीन्स चेंज इन लेंथ, ठीक है। उसके अगर लेंथ एग्जिस्टिंग वायरिंग है, उसमें अगर लेंथ को और इंक्रीज करना है, तो ये तो ओपन वायरिंग है ना एक तरह से, अगर इसके फिगर को देखो, या क्या ये तरह से ओपन है, ठीक है। किसी एंड पर आकर के वायरिंग खत्म हो जा रहा है यहाँ पर सपोज, और इसको अल्ट्रेशन करना हो, अगर और थोड़ा सा लेंथ को इंक्रीज करना हो तो हम लोग कर सकते हैं। यहाँ से इजिली इसको वायर को हम लोग कट करेंगे और यहाँ से कनेक्शन करके तो उसको आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर यही चीज हमारा पूरा सिस्टम पाइप के अंदर में होता तब तो फिर हम लोगों को बीच से, अगर बीच से कहीं से करना हो तो क्या करना है, पाइप में जहाँ पर एंड हो रहा है वहां पर हम लोगों को केबल को निकालना पड़ेगा, फिर ज्वाइंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इजी है कि यहाँ पाइप वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, सिंपल वायर से ही है, तो जहाँ जरूरत है उसको कट करेंगे हम लोग और यहाँ से टैपिंग करके एक्सटेंड कर सकते हैं वायर। तो यही कहने का मतलब अल्ट्रेशन एंड एडिशन जो भी है। डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? इट इज प्योरली टेम्पोररी वायरिंग सिस्टम, ठीक है। इस तरह का जो भी वायरिंग हम लोग करते हैं वो टेम्पोररी बेसिस पे ही ज्यादातर करते हैं। परमानेंट वायरिंग के लिए इस तरह का सिस्टम का अडॉप्ट करना ज्यादा सुटेबल नहीं है, क्योंकि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो ये बेटर ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ओल्ड एज में, जब काफी पहले के समय में, जब हमारे पास उतना ज्यादा मेथड्स
ये वायरिंग का नहीं था, तो उस वक्त ये काम चल जाता था और उस वक्त उतना हैवी पावर के इक्विपमेंट्स को भी यूज नहीं करना पड़ता था, सिंपल लाइट फैन के लिए यूज करना पड़ता था, तो हमारा इससे भी काम चल जाता था। लेकिन आज के दिनों में क्या है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स इतने सारे यूज करने करते हैं सब कोई घर में, ठीक है, उसके लिए जो केबल चाहिए वो भी हाई कैपेसिटीज के चाहिए, हाइयर रेटिंग्स के चाहिए, तो वो करंट कैरी जो करता है वो भी ज्यादा कैपेसिटी का होता है। तो अगर इस तरह का वायरिंग को वहां पर यूज करेंगे उस तरह के इक्विपमेंट के लिए जो कि हाइयर करंट कैरी कर रहा है, तो वो और ज्यादा हमारे लिए डेंजरस होगा। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह के वायरिंग को यूज परमानेंट बेसिस पर करना सही नहीं है, ठीक है। टेम्पोररी बेसिस पर कहीं किया जा सकता है थोड़ा बहुत अगर जरूरत हो तो। अपीयरेंस इज नॉट गुड, ठीक है, एग्री। cables are exposed to the atmosphere and there is possibility of mechanical injury, बिल्कुल हो सकता है मैकेनिकल इंजरी किसी चीज से, अगर कोई चीज अगर वायर पे हमारा लगता है या तो हो सकता है कि वायर हमारा कट हो जाए, ठीक है, हो सकता है उसके कारण इलेक्ट्रिक शॉक भी लगने का चांसेस हो। एंड दिस टाइप ऑफ सिस्टम शुड नॉट बी यूज्ड इन डैम्प प्लेसेस, ठीक है, जहाँ की मॉइस्चर वगैरह का इशू हो वहां पर इस तरह से ओपन वायर को इस तरह से लेआउट करके और वायरिंग करना ये बिल्कुल ही डेंजरस है, ठीक है। इस तरह के वायरिंग को वैसे लोकेशंस पर नहीं करना चाहिए, ठीक है, भले टेम्पोररी करना हो फिर भी नहीं करना चाहिए अगर मॉइस्चर वहां पर अवेलेबल, ठीक है। तो ये इसके कुछ प्लस और माइनस पॉइंट्स थे related with the clit wiring. I think it is clear to all of you, clit wiring. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now the second one, that is casing and capping wiring. नाम से क्या पता चल रहा है, केसिंग एंड कैपिंग? किसी केस वायर के जो अंदर पाइप क्या वायर जो इसका भर रहना चाहिए, पाइप का यूज करते हैं। पाइप का यूज करते हैं, ओके, बिल्कुल सही। यहाँ पर हम लोग केसिंग एंड कैपिंग, ठीक है, कैपिंग बेसिकली करने का मतलब क्या है, कैप कैप लगाना, ठीक है ना, बोतल में हम लोग कैप लगा रहे हैं ना, तो क्या उसका पर्पस क्या है, उसको क्लोज करना, पैक कर देना इस तरह से, ठीक है। और केसिंग क्या है, केसिंग एक बेसिकली एक तरह का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम लोग वायर को रखते हैं और उसके ऊपर से उस वायर को कवर कर देते हैं, पैकिंग कर देते हैं, ठीक है। यही कहने का मतलब है केसिंग एंड कैपिंग, ठीक है। पहले इसके फिगर को देख लो, इस तरह का जो भी हमारा वायरिंग, इस तरह का वायरिंग हम लोग करते हैं अभी भी कई जगह पर। अगर इकोनॉमिकल वे में हम लोग को करना हो वायरिंग तो इस तरह का हम लोग वायरिंग का मेथड अडॉप्ट करते हैं, है ना। यस सर। तो यहाँ पर क्या है बेसिकली, ये जो देख रहे हो ये हमारा केसिंग है, ठीक है, जो कि यहाँ ये स्क्रू के थ्रू वॉल में इसको फिट किया हुआ है, ठीक है। और इसके ऊपर हमारा इस वायर को हम लोग कैरी कर रहे हैं, ठीक है, और ऊपर से इसको फिर हम लोग कवर कर दे रहे हैं कैपिंग के थ्रू, ठीक है। ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये इसको हम लोग कहते हैं कैपिंग, ठीक है। तो यही हो गया केसिंग, उसके अंदर में हम लोग वायर रहता है और उसके ऊपर से कैपिंग, उसको कवर कर कैप लगा दी, इसलिए इसको कहते हैं केसिंग एंड कैपिंग वायरिंग, ठीक है। उसी का ये एक दूसरा डायग्राम है, क्रॉस सेक्शनल व्यू के थ्रू दिखाया हुआ है। ये हमारा केसिंग हो गया, ठीक है, यही चीज है ये दोनों डायग्राम सेम है। केसिंग फॉर वायर्स या तो इस तरह से हो सकता है या दो सेक्शन भी बने हो सकते हैं, ठीक है। और ये केसिंग का कवर, ठीक है, दैट इज कैपिंग,
ठीक है, ये हमारा केसिंग का कवर है, दैट इज कैपिंग, और इसके बीच में वायर हम लोग इस तरह से लेआउट कर सकते हैं। ओके, तो फिगर समझ में आ गया, तो आई थिंक उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यस सर। ठीक है, अब देखो यहाँ कहता क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स, ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स मेड फ्रॉम सीजनल एंड नॉट्स फ्री वुड, मतलब कि सीजनल वुड का बना होता है जो जिसमें कि दीमक वगैरह नहीं लग सकते, नॉट्स फ्री वुड, ठीक है। Nowadays PVC is also used for manufacturing of such type of rectangular blocks, ठीक है। रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स बेसिकली क्या कह रहा है, केसिंग एंड कैपिंग, ठीक है, दोनों रेक्टेंगुलर फॉर्म में ही है, ठीक है। तो वुड का भी यूज कर सकते थे हम लोग, और आजकल इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पीवीसी का यूज किया जाता है, ठीक है। दोनों ही हमारा जो है नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, ठीक है, लेकिन आजकल क्या है कि वुड का बनाना थोड़ा कॉस्टली हो गया है, और मॉइस्चर वाले प्लेस में वुड का अगर बना हुआ हो केसिंग एंड कैपिंग तो वो भी थोड़ा सा एक इशू है, ठीक है। इसलिए पीवीसी ज्यादा सुटेबल है और इकोनॉमिकल भी है, पीवीसी मटेरियल का बना हुआ केसिंग एंड कैपिंग, और वही फ्रिक्वेंटली यूज भी होता है आज के समय में, ठीक है। सो द केसिंग हैज यूजुअली 2 or 3 शेप ग्रूव्स, ठीक है, into which the VIR or PVC cables are led in such a way that the opposite polarity cables are led in different groups, ठीक है। ये इस तरह से बना होता है हमारा कि इसमें अपोजिट पोलैरिटीज के केबल को हम लोग डाल सकते हैं, ठीक है। तो वो इसमें हमारा अगर लाइव वायर है तो यहाँ पर हमारा न्यूट्रल के लिए वायर जा रहा है वो होगा, ठीक है। इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं, या अगर हमारा थोड़ा इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, या फिर बहुत ज्यादा हाई करंट कैरिंग कैपेसिटी वाले केबल्स का यूज नहीं करना है, तो सिंगल ग्रुप वाले में भी हम लोग यूज कर सकते हैं। यहीं पर हम लोग फेज और न्यूट्रल वायर दोनों को एक ही साथ हम लोग रन करा सकते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि किस तरह का हम लोगों को करना है, तो दोनों ऑप्शन है, लेकिन ज्यादा बेटर होता है कि अलग अलग ग्रुप्स में अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायर को हम लोग फेज को अलग ग्रुप्स में और न्यूट्रल को अलग ग्रुप्स में हम लोग लेआउट करें तो ज्यादा बेटर होता है, ठीक है, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। The casing is covered by means of a rectangular strip of same width as that of casing, that is known as capping, and is screwed to it, ठीक है, स्क्रू किया हुआ रहता है वॉल में हमारा। This type of wiring suitable for low voltage installation, ठीक है। ये जैसे देखो ये हमारा लकड़ी का है, ठीक है, वुडन केसिंग एंड कैपिंग वायरिंग सिस्टम, ठीक है। और ये हमारा जो था ये पीवीसी का है। समझ में आ गया केसिंग एंड कैपिंग। अब इसके हम लोग देखते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। ऑब्वियसली यहाँ भी कुछ इसके प्लस और माइनस होंगे, तो क्या क्या है एडवांटेजेस, इट प्रोवाइड्स गुड इंसुलेशन एज कंडक्टर्स आर अपार्ट, ठीक है, सेपरेट ग्रुप्स में हम लोग इसको कर रहे हैं फेज और न्यूट्रल को, तो इट प्रोवाइड गुड इंसुलेशन, ठीक है। इट प्रोवाइड्स गुड मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑल्सो, अगर कंपेयर करें क्लिट वायरिंग से, क्लिट वायरिंग क्या था, वहां किसी हम लोग केसिंग कैपिंग या किसी पाइप वगैरह का यूज नहीं कर रहे थे, ओपन टू एटमॉस्फेयर था, ठीक है, तो वहां मैकेनिकल इंजरीज का ज्यादा चांसेस था कंपेयर टू केसिंग एंड कैपिंग टाइप ऑफ वायरिंग, ठीक है। ये कवर है हमारा वायर्स जो भी है, तो मैकेनिकली ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस तरह का वायरिंग ज्यादा सुटेबल, ठीक है। इट इज इजी टू इंस्पेक्ट बाय ओपनिंग द कैपिंग, ठीक है, कैपिंग को हम लोग नॉर्मली ओपन करके देख सकते हैं कि कहीं कुछ वायर में कट पॉइंट तो नहीं हुआ है या कुछ इश्यूज तो नहीं है,
ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? इट इज कॉस्टली सिस्टम इफ वी यूज सीजनल नॉट फ्री वुड। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर पीवीसी का भी यूज करने लगे। देयर इज एवरी रिस्क ऑफ फायर। ठीक है, एवरी रिस्क ऑफ फायर ये इसलिए कहा गया है कि अगर हम लोग वुडन वुड का यूज करते हैं यहाँ पर केसिंग एंड कैपिंग के लिए, तो वहां पर फायर के चांसेस थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, इसलिए वो एक डिसएडवांटेज में ये चीज लिखा हुआ है। द लेबर कॉस्ट इज मोर बिकॉज इट रिक्वायर्स स्किल कारपेंटर्स। ठीक है, ये भी वुडन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही लिखा हुआ है, वुडन केसिंग एंड कैपिंग का यूज करें तो अगर हम लोग पीवीसी का यूज करते हैं तो ये सब डिसएडवांटेज को भी हम लोग ओवरकम करते हैं। ठीक है, एंड द सिस्टम कैन नॉट बी यूज्ड इन डैम्प प्लेसेस। ठीक है, तो अगर वुडन केसिंग कैपिंग का यूज नहीं करते तो ये भी डिसएडवांटेज को हम लोग ओवरकम कर सकते हैं बाय यूजिंग पीवीसी। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट्स था, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज रिलेटेड विद केसिंग एंड कैपिंग टाइप ऑफ वायरिंग।